एक बार फिर से बात करते हैं। बाबा बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1965 के मनाजिर उन्होंने क्या देखे। जी असां वेख्या ही जंग वेखी अपने पिंड ही ढियारे अड्डे ते। ठीक है। जब इंडिया की फौज ने हमला किया आ, हाँ जी, कुछ मुंह मनेरे मतलब अजाना तो कुछ पहले, अजाना तो पहले, ठीक है, तुरी आई है फौज ते साडे ईदगाह आ उहदे चौंक च जिसले आईए तो इधरों पई है साडी गड्डी जीप। अच्छा जी। पहला तो साडे सिविल नाल गल्लां करदे पुछदे आ भी लाहौर किड्डी दूर आ, तो आम सानू पता है भी 20 मील आ, भाजी 20 मील आ, अहां चाह लाहौरों जाके पीनी है। अच्छा अच्छा ऐ करके और दसी ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। अच्छा ठीक है। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਉਹ ਠਾਂ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਬਿਆ ਘਟਾ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਕੋਲ ਐਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਜੀ ਪਈ ਐਲਐਮਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਨੇ ਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਮ ਲੇਟ ਕਰਾਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਢਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਰਹੀ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਰਸਟ ਢਾਹ ਕੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਰਲੇ ਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜਨੀ ਯਾਰ ਵਾਲੇ ਜੂੰਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜੂੰਟ ਨੇ ਥੱਡ ਬਲੋਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਉਹਨਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, 9 ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ 16 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਹੋਗੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ੋਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਸਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ सिर्फ LMG गन इंजीनियर यूनिट देने। ठीक है। पर फिर से बात करेंगे, बाबा बशीर हमारे साथ मौजूद है और वो हमें बड़ी डिटेल में बता रहे थे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। जी जी। ये जेडे इंजीनियर यूनिट दे सी ना, ये 9 बंदे से 9 पहलवान सन। रशीद हवालदार इन्हां दा इंचार्ज सी। सईदाड़ा पिंड किस साइड पे? ये अपने फैसलाबाद च अच्छा अच्छा उत्थों दा ठीक ठीक जी। आह ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 16 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਿਆ ਪੁਲ ਵਾਲਾ। ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਗਾ ਟੁੱਟੇ, ਕੌਂਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਧਰ ਫੌਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਖ ਦਿਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50-60 ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਵਾਂ ਜਾਣਿਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨੀਫ ਨਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 40-50 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਫ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਆਂਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਂਝ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ जी जी। ऐसा तो फिर ओपी उन्होंने देने दे मारे यार कांडे च बोले। बिल्कुल, जो जवान वहाँ पर थे वो बाबा जी यही कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे थे कि हम तो शहीद होने के लिए ही यहीं पर हैं, लेकिन हम इन्हें भी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जो जवान सी जड़ा कहंदा सी मैं लाहौर जाके ब्याह करना है, ओदा ते ओ ते फिर ओथे ही लमलेट ओ फिर साडी भूआ दा वो सी सफदर ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਨਾ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਤੇ फौज है ही बड़ी थी। ज़नफ़र साहब, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे टेक्निक के हवाले से, ये जंग टेक्निक वाली नहीं थी, ये जज्बे वाली जंग थी। बिल्कुल। बीबी ने सवाल किया है कि केड़ी टेक्निक ते लड़े? नहीं, टेक्निक नहीं, सिर्फ अल्लाह दे रसूल दी मदद। जी जी बाबा जी, ਅਸੀਂ भी यही कह रहे हैं कि जज्बा सी जी। जिस लिए ना फिर रात 10 वजे मोर्चा छड्या ना ते ਉਹ ਪੁਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਢਾਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਲੂਮ ਆਵੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਦਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਤਜੀਰਾ ਨਾਲ ਬੱਦਾ ਉਹਨੇ ਤਜੀਰਾ ਫਿਰ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਬੰਬ ਮਾਰਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ बड़ी गल है, बड़ी बात। साडी रब मदद करन दे, बरेसे मदद करन दे। बिल्कुल। फिर उन्हां बिल्कुल ऐसी अल्लाह की मदद देखे शामिल थी। मैं यही अच्छा जी यह अखा देखा जी जी अल्लाह ताला वाकई बरेसे भेज दे। बाबा जी ਅਸੀਂ ब्रिगेडियर साहब ਨਾਲ भी ਗੱਲ करनी है, फिर गल करनी है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से बात कर रहे थे टेक्निक के हवाले से, तो जो जज्बा इस वक्त बाबा जी बता रहे हैं, शाहिद रहे हैं इस जंग के, वो जज्बा भी बड़ा कमाल का था। देखिए
1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। जी जी। 65 तक वो जनरेशन रह रही थी जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा था। बिल्कुल। और तारीख का सबसे बड़ा मैसेकर जो हुआ है ना आज तक, वो जब इंडिया पाकिस्तान बना है तो उस वक्त वो मैसेकर हुआ जी। बिल्कुल। और जिस तरह औरतों की इज्जत टूटी गई, जिसमें हमारी औरतें वहाँ रह गई, बच्चे इंडिया में रह गए, जिस तरह उनको मारा गया, अगर आप पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हुए। अब वो जनरेशन मौजूद थी, उस जनरेशन ने अपने एक्सपीरियंसेस ट्रांसफ़र किए थे उन लोगों में जो उस वक्त फ़ौज में शामिल हो रहे थे या ऑलरेडी फ़ौज में मौजूद थे। तो उनको ये एहसास था कि पाकिस्तान की सर्वाइवल कितनी ज़रूरी है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, पाकिस्तान के पास कुछ 16 कैवलरी रेजिमेंट्स थी। हाँ जी। हमारे पास शर्मन टैंक थे, M41 थे, फिर कुछ शेफरीज थे, कुछ को हमने अपग्रेड किया हुआ था। इस तरह आर्टिलरी की गन्स थी। इस तरह जैसे बाबा जी ने कहा कि वहाँ पे आपने पुल को, वो जो बाटापुर का पुल था उसको डेमोलेट किया पहले। हालांकि इस किस्म की सेंसिटिव जगहों पे पहले डेमोलेशन इक्विपमेंट लगा दिया जाता है, लेकिन क्योंकि एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। बाबा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शायद कुछ कमेंट शॉर्टली। वो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਡਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਰੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। हडियारे दी रोई दी मैं गल करदा जेड़ा पुल अपना जहाज डाउंदा रहा। देखिए ना, BRBL पूरी चल रही थी बिल्कुल, और जितनी भी पाकिस्तान की जितनी भी BRBL के साथ जितनी भी जगहें थी सब पे पुल बने हुए थे, क्योंकि अब लोग हमारे पार जा, अब उन पुलों को डेमोलेशन करना जरूरी था। यहाँ भी किया गया, फिर BRB पे जाके आपको पता है अपना मेजर अजीज भट्टी शहीद, और उसके बाद जो उन्होंने, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि पहले इंडिया को रोका, सस्टेन किया, डेवलपमेंट की, कंसंट्रेशन हुई, लोग अपने डिफेंसेस में गए। उसके बाद जब आपकी ये इन हफ्ते में ये चीज पूरी हो गई, फिर आप काउंटर ऑफेंसिव पे गए, और उस पे जैसे मैंने आपका पाकिस्तान ने खेमकरन कैप्चर किया, बल्कि पाकिस्तान की आर्मड कोर जो टैंक्स थे वो खेमकरन से आगे चले गए, उसमें थोड़ी सी हमारी टेक्निक जो है वो फॉल्टी हो गई तो हमें रिवर्स, लेकिन खेमकरन पाकिस्तान के पास आखिर वक्त तक रहा। तो इसमें वाकई इसके साथ मैंने आपसे कहा उन लोगों का जो जज्बा था, शायद आज वो जज्बा थोड़ा मांद कर गया है, लेकिन चूंकि 47 से को उजागर करना हमारा पर्पस है, हम यहाँ बैठे हैं इसी वजह से। आप ये बताएं कि पाकिस्तानियत जरूरी क्यों है? बिल्कुल बहुत जरूरी है। रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, उनका आज आप प्रेडिक्शन देख लें कि उन्होंने क्या कहा था। सिर्फ अगर हम यही गौर करें, उन्होंने कहा था कि मुसलमान और हिंदू आर टू डिफरेंट, हमारा कल्चर, हमारा मजहब मुख्तलिफ है। आज आप देख लें इंडिया में क्या हो रहा है माइनॉरिटी के साथ। बिल्कुल आप मैं चाहूंगा इसमें आप एडअप कीजिएगा, जिस तरह से हम 1965 का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त जब लोगों का हमने जज्बा देखा, जो कहानियां हमने सुनी हुई हैं, वो हम यही सुनते आए हैं कि लोग भी बाहर निकल आए थे और लोग ये कहते थे कि हमें भी किसी तरह बॉर्डर पर जाने दें, हमें इनसे लड़ने दें।